Hello friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel Pritam's Academy. This is Pritam. Today we are going to discuss the 10th standard history 3rd chapter Applied History. So let's begin with the chapter Applied History. There are 5 points in this chapter. What is applied history? Applied history and research in various fields. Applied history and our present. Management of cultural and natural heritage. Affiliated professional fields. So in this part I am going to cover only first 2 points, that is what is applied history and applied history and research in various fields. So let's discuss what is applied history. Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. Now see, here the meaning of applied history is provided. So we have to understand 3-4 points here. What is applied history? It's a field of study concerned with the application of history. So this is what field? Field of study. And what is concerned with? It is concerned with the application of history. For what? For the benefit of people. Now which people? People in the contemporary and future times. What is the meaning of contemporary? Contemporary means हमारे साथ जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं contemporary. तो हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है उसको हम कौन सी घटनाएं बोलते हैं? Contemporary events. So the people in the contemporary and future times. So very simple definition of applied history in simple way you can learn. It is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. तो applied history का कुछ फायदा है कि हमें बहुत फायदा. देखो, knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. देखो बहुत बड़ा यूज यहाँ पे हिस्ट्री का बताया गया. क्या हिस्ट्री का क्या उपयोग कर सकते हैं हम? It can provide guidance in finding solutions. हमें बहुत सारे solutions हम ढूंढ सकते हैं हिस्ट्री में. किसके लिए solutions? To contemporary social issues. तो अभी फिलहाल जो social issues चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे कास्ट समस्याएं हैं, रिलीजन के प्रॉब्लम्स है, इसके लिए solutions हम हिस्ट्री से ढूंढ सकते हैं. एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग. अगर ये सोल्यूशन हमने ढूंढे तो उनको हम हमारे सोशल प्लानिंग में क्या कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. राइट. Knowledge of history is essential for this purpose. The projects and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. तो जो applied history में प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं क्या? Yes. So it can bring the opportunities for people to participate along with the technical experts. तो ये प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके साथ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient sites is also important. So their participation मतलब किसका participation? तो लोगों का participation. जब लोग participate कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में, कैसे? With the capacity of tourist. As a tourist जब वो participate करते हैं visiting museums and ancient site, this is very important. इससे क्या होता है? टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है. टूरिज्म creates interest in history among people. जब हम टूरिज्म के लिए जाते हैं, अलग अलग एंशिएंट साइट्स देखते हैं या फिर कोई म्यूजियम को विजिट करते हैं, तो इससे किसका इंटरेस्ट तैयार होता है? हिस्ट्री का. राइट. दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज. और जब हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, एंशिएंट साइट को, म्यूजियम को, और वहाँ के जगह का महत्व हमें समझता है ना, तो हम क्या करते हैं? हमारे आजू बाजू में जो प्रोजेक्ट्स है, जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी हम क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. राइट. इसलिए अप्लाइड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में आपको 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ. पहली चीज़ है कि अप्लाइड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर सोशल इश्यूज. और अगर हमें सोल्यूशन मिल गए तो उसको हम किस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? हमारे सोशल प्लानिंग में. इतना ही नहीं, लोगों को भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक बार उनको इसका महत्व समझ में आ गया तो अपने लोकल एरिया में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उस एंशिएंट साइट्स को क्या करेंगे? वो कंजर्व या प्रिजर्व करेंगे. तो देखो, व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री में और एक पॉइंट दिया गया है, वो है पब्लिक हिस्ट्री. तो पब्लिक हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. देखो, मिसगिविंग का मतलब होता है गलत फहमियाँ. लोगों को हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ. हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड्स. तो यहाँ पे बताया, लोगों का ऐसा कहना है कि हिस्ट्री किसका फील्ड है? सिर्फ वो हिस्टोरियन लोगों का फील्ड है, या फिर जो स्टूडेंट्स है जो इस सब्जेक्ट में क्या करना चाहते हैं? हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई देना देना नहीं. राइट. और लोगों का कहना है कि ये जो नॉलेज है हिस्ट्री का,
उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते किसके लिए, फॉर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड। लेकिन ये बहुत ही गलत है, ये लोगों की मिसगिविंग्स है, गलत फहमियाँ हैं। एक्चुअली पब्लिक हिस्ट्री क्या कर सकता है, आगे दिया है। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। तो पब्लिक हिस्ट्री क्या करता है, ये जो गलत फहमियाँ लोगों की वो पहले दूर करता है, और जो मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री, और हमारे हर रोज का जो लाइफ है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। There are many universities abroad where various courses in public history are offered. Srushti Institute of Art Design and Technology is an institute at Bengaluru, Karnataka. This institute has an independent department named Center for Public History. This department has taken up various projects and research in the field of पब्लिक हिस्ट्री। तो देखो बाहर के कंट्री में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, किसमें, पब्लिक हिस्ट्री में। और हमारे इंडिया में बैंगलोर में, कर्नाटका में एक इंस्टीट्यूट, क्या नाम है उसका, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, उसका एक डिपार्टमेंट है। क्या नाम है डिपार्टमेंट का, सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च पब्लिक हिस्ट्री में कैरी ऑन कर रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम और डिपार्टमेंट का नाम आपको याद रखना है। और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। तो देखो ऊपर हमने देखा कि अप्लाइड हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे हम बहुत सारे सोल्यूशन सोशल प्रॉब्लम के लिए ढूंढ सकते हैं और उसको हमारे सोशल प्लानिंग के क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से फील्ड्स है जिसमें हमें अप्लाइड हिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के हिस्टोरिकल नॉलेज हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया वो पहले समझ लेते। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, द वे आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। देखो तो हिस्ट्री किसके बारे में होता है, पास्ट इवेंट में। और अभी हमारा जो लाइफ चल रहा है, जो लाइफ शेप हो रहा है, वो किसकी वजह से हुआ है पता है आपको, बहुत सारे हिस्टोरिकल चेंज ऑफ इवेंट्स है उसकी वजह से हुआ है। मतलब पास्ट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, उसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट जो लाइफ स्टाइल है वो शेप हुआ है, राइट। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो जो पास्ट इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो किसके रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड होते हैं, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी होता है, फिलोसॉफी रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी एंड साइंस रिलेटेड होते हैं। ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। और हर एक जो फील्ड के बारे में बात करें उनका क्या होता है, खुद का नॉलेज होता है, खुद का हिस्टोरिकल नॉलेज होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। चलो हम एक फील्ड लेते हैं, वो है फिलोसॉफी। भाई फिलोसॉफी फील्ड का फ्यूचर डायरेक्शन कैसे रहेगा, उसका डेवलपमेंट कैसे रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल नॉलेज। जो नॉलेज अवेलेबल है उसके हिसाब से उसका फ्यूचर डायरेक्शन रहेगा, राइट। हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो इसलिए देखो ये जो फील्ड के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये हर एक फील्ड का हिस्ट्री हमें पता होना बहुत जरूरी है। और इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ हिस्ट्री। तो देखते हैं अलग अलग ब्रांचेस में हम मेथड ऑफ हिस्ट्री यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला ब्रांच कौन सा है, फिलोसॉफी। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो फिलोसॉफी, जो हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी है वो हमें किस लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज का मतलब हमने पहले और दूसरे चैप्टर में देखा है, इट इज अ सेट ऑफ आइडियाज। तो कोई स्कूल ऑफ थॉट होता है वो कैसे डेवलप होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज। तो ऐसी कौन सी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, घटनाएं हुई है जिस घटनाएं की वजह से ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स तैयार हुए, ऐसे आइडियोलॉजीज तैयार हुए, एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और जो हमने क्रोनोलॉजी इसका, इस आइडियोलॉजीज का, वो भी हम फिलोसॉफी में स्टडी कर सकते हैं। फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो चलो फिलोसॉफी का जो ज्ञान है हमें अगर एक्सप्रेस करना है तो एक ही मीडियम है, एक ही माध्यम है, और क्या है, लैंग्वेज, भाषा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। तो देखो फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन अगर हमें समझने हैं तो किसका हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, उस भाषा के इतिहास का भी हमें पता होना चाहिए, राइट। So when we study about the philosophy, we study about the origin of ideology, their intellectual tradition, their historical development, and the history of language. Now second very important field where we can apply the historical method is science. The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. तो क्या फायदा होता है हमें साइंस के इतिहास का। जब हम साइंस के इतिहास का स्टडी करते हैं तो हमें 3-4 चीज़ें समझते हैं। पहला है वी अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो जो जो डिस्कवरीज हुई है उसका हमें क्रोनोलॉजी पता चलता है। सेकंड है इन्वेंशंस एंड थ्योरीज, इनका भी क्रोनोलॉजी हमें पता चलता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन
that led to those discoveries and inventions. तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में हमें और एक चीज पता चलती है, वो है कॉज इफेक्ट चेन। ऐसी कौन सी घटना है, ऐसे कौन से कॉजेस है और इफेक्ट्स है जिसके वजह से ये डिस्कवरीज और इन्वेंशंस है वो हमें मिले हैं। इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जरूरत की वजह से बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। तो जब भी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होता है वो क्यों होता है पता है आपको? इट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। इंसानों की कोशिश होती है। और क्यों होती है कोशिश? टू फुलफिल अ नीड, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, उनकी जो जिज्ञासा है वो पूरी करने के लिए। दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। तो मुझे बताओ, कोई इंसान कोई चीज़ ढूंढता है या फिर कोई डिस्कवरी करता है तो अचानक करता है कि नहीं, उसके पास ऑलरेडी कुछ साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैव दैट डिस्कवरी, राइट? Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery, invention and also its chronology. जब हम हिस्ट्री ऑफ साइंस की बात करते हैं तो हमें वो फैक्टर्स भी पता चलते हैं जिन फैक्टर की वजह से किसी साइंटिफिक डिस्कवरी या इन्वेंशन का पता चला है, और उसका जो क्रोनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है, वो भी हमें पता चलते हैं। तीसरा ब्रांच है जिसमें हम हिस्टोरिकल मेथड यूज करते हैं, वो है टेक्नोलॉजी। The history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering, etc. जब हम टेक्नोलॉजी का इतिहास स्टडी करते हैं तो हमें कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, जो बदलाव हुए हैं, और इस बदलाव के जो कॉजेस है, जो परिणाम है, कौन से फील्ड में? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, राइट? साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो याद रखना, मानव जाति के उत्क्रांति में हमारे पास जो ज्ञान था साइंस का और टेक्नोलॉजी का, बहुत जरूरी है। कहाँ से कहाँ तक? तो स्टोन टूल से लेके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तक, राइट? ये नॉलेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम मानव जाति का उत्क्रांति जो है, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो, ये साइंस का जो इतिहास है, टेक्नोलॉजी का इतिहास है, इसकी वजह से कौन सा डेवलपमेंट हुआ? मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमने प्रोडक्शन के लिए किसका यूज शुरू किया? मशीन्स का। इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. तो हमें टेक्नोलॉजी का इतिहास समझना क्यों जरूरी है? देखो, तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन है, मशीन्स का डेवलपमेंट है, वो समझने के लिए, और जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है दो ब्रांच का, किसका? साइंस और टेक्नोलॉजी, ये समझने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो चौथा ब्रांच कौन सा है जिसमें हम हिस्टोरिकल मेथड यूज कर सकते हैं? वो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो याद रखना कि जो इंडस्ट्री एंड ट्रेड होता है, जो व्यवहार होता है, बिजनेस होता है, वो किसके ऊपर चलता है? म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस। मतलब समाज में जब दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, तो वहाँ से बिजनेस भी शुरू होता है, राइट? ट्रेड शुरू होते हैं। इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शंस। तो इंडस्ट्री और ट्रेड में एक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कल्चरल इंटरैक्शंस, राइट? तो वो भी हमें इसकी वजह से समझता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। तो बिजनेस और कॉमर्स में कल्चरल इंटरैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो कॉमर्स में, इंडस्ट्री में जब ग्रोथ होता है, कौन से प्रोसेसेस है जिसकी वजह से ग्रोथ होता है, ये प्रोसेस समझना भी बहुत जरूरी है। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज कंटिन्यूड टू चेंज। जैसे समय बदलता है तो नेचर, जो मार्केट और कॉमर्स का नेचर, वो भी क्या होता है? वो चेंज होता है। अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैज कंटिन्यूड टू चेंज। तो जैसे मार्केट का नेचर चेंज होता है तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स का भी नेचर चेंज होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी नेचर चेंज होता है। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो अगर हमें ये चेंजेस स्टडी करना है तो हमें क्या समझना जरूरी है? वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमें कल्चर का हिस्ट्री समझना जरूरी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री समझना जरूरी है, एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का हिस्ट्री समझना जरूरी है। तो दिस वाज द फोर्थ ब्रांच। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ ब्रांच whose history is very important for us, that is management studies. In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources,
and process of production as well as the chain of market and sales management, etc. It is essential to have a knowledge of similar functional systems of the past. अगर हमें चेन ऑफ प्रोडक्शन में जो अलग अलग फैक्टर्स अगर उनको समझना है तो चेन ऑफ प्रोडक्शन में कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, इसके अलावा चेन ऑफ मार्केट है, सेल्स मैनेजमेंट, इन सब फैक्टर्स को अगर हमें समझना है तो हमें और क्या पता होना चाहिए, वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द पास्ट. तो पास्ट में ऐसे कौन से सिस्टम थे चेन ऑफ प्रोडक्शन में, वो भी हमें पता होना बहुत जरूरी है. इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट. तो देखो मैनेजमेंट स्टडीज में हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जो लोगों का वो भी समझना बहुत जरूरी है. कौन से लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ चेन प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट. In order to achieve it, understanding of the social and economic institutions that support the industrial and commercial processes is important. अगर हमें हेल्दी मैनेजमेंट लाना है तो और दो चीज़ें समझना बहुत जरूरी है. कौन सी हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कौन सी संस्थाएं हैं सामाजिक आर्थिक, उनको समझना जरूरी है, जो किसके लिए सपोर्ट करते हैं हमें, दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेसेस. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स ईजियर. अगर हमें इन सब चीज़ों का अगर नॉलेज है, various factors in the chain of production, psychological character of people and various social and economic institutions, this knowledge will help us for what, for the management at various levels. अगला ब्रांच है वो है आर्ट्स. It is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. तो आर्ट्स कला ये शाखा भी हमें समझना जरूरी, इसका इतिहास भी पता होना जरूरी है क्या, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या समझते हैं हम इस फील्ड में, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट्स फॉर्म्स विथ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशन. चलो ये पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको. विद द हेल्प ऑफ, विद द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, हमें और एक चीज समझना जरूरी है, देयर फाउंडेशन, जो कला का बेस होता है वो समझना जरूरी है, इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, मतलब इसके लिए कोई स्कूल ऑफ थॉट है, उसके रिलेटेड ये आर्ट है क्या, वो समझना जरूरी है. इमोशनल, तो जो टेम्परामेंट है, जो नेचर है आर्टिस्ट का, वो समझना जरूरी है. एंड कल्चरल, तो ये जो आर्ट है किसी कल्चर से रिलेटेड है, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, किसी एथिकल ग्रुप से रिलेटेड है, वो समझना भी जरूरी है. द की टू द एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, दैट इज इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट and the development history of the respective art form can be understood with the help of cultural history, right? तो ये कल्चरल हिस्ट्री बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए. देखो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या होती है वो, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट, मतलब उस कलाकार का जो स्वभाव है वो कला परफॉर्म करते समय, प्रेजेंट करते समय, वो समझना बहुत जरूरी होता है. और सेकंड है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म, तो उनका ऐतिहासिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो समझना जरूरी है. और ये दोनों भी चीजें हम किसके हेल्प के साथ समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री. और लास्ट शाखा है डिसिप्लिन, दैट इज ह्यूमैनिटीज. ह्यूमैनिटीज इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा. तो कौन से शाखाओं का समावेश होता है ह्यूमैनिटीज में, पहला है हिस्ट्री, दूसरा है आर्कियोलॉजी, तो यहाँ पे एक्सकेवेशन होता है जो साइंटिफिकली किया जाता है, उस फील्ड को बोलते हैं आर्कियोलॉजी. सेकंड है सोशियोलॉजी, यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के जो इंटरेक्शन है उसका पढ़ाई किया जाता है. थर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, उसको मानव वंश शास्त्र बोलते हैं, तो यहाँ पे बोन्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं ह्यूमन कम्युनिटी के, वो उसको पढ़ाई किया जाता है. पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो इन शाखाओं का समावेश होता है ह्यूमैनिटीज में. टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग. तो हमें इन सब शाखाओं का जो इतिहास है, ठीक, उनके ओरिजिन का इतिहास, इनका कब उदय हुआ है, ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लर्निंग. ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी. ऐसा बोला जाता है कि सभी शाखाओं का जो उदय हुआ है, उगम हुआ है, वो किससे हुआ है, फिलोसॉफी में हुआ है. एंशिएंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेक्यूलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने कोशिश की है स्पेक्यूलेट, सोचने की, बहुत सारा सोचते थे, वो स्पेकुलेशन करते थे, किसके लिए, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स, ये जो विश्व है और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व है, इन दोनों का रिलेशन समझने के लिए उन्होंने बहुत सारा स्पेकुलेशन किया है. इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, गॉड्स एंड गॉडेसेस, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन.
तो हमारे पुराने वंशजों ने जो स्पेकुलेशन किया है, उस स्पेकुलेशन की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरी, दंत कथाएं सामने आई। कौन सी दंत कथा है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ है, द यूनिवर्सल ऑर्डर, इस विश्व की जो व्यवस्था है वो कैसे तैयार हुई है, ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन कैसे तैयार हुआ है, गॉड्स एंड गॉडेसेस, देव और देवताएं कैसे आई है, रिचुअल्स, हमारे जो परंपरा है, रिचुअल्स का मतलब होता है जो हमारे धार्मिक विधि होते हैं वो कैसे आए, एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, और इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, राइट। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दिस माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो हम जो सोचते हैं, मतलब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस दुनिया की निर्मिति कैसे हुई है, ये दुनिया की निर्मिति कैसी हुई, ये जो सोच है, इस सोच का जो रूट है किसमें मिलता है हमें? फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग में। पॉन्डरिंग का मतलब होता है थिंकिंग, फिलोसॉफिकल थिंकिंग में मिलता है। Various disciplines under humanities have theoretical foundations based on philosophical theories. तो बहुत सारी जो डिसिप्लिन शाखाएं हैं ह्यूमैनिटीज में जो आती है, उनका जो फाउंडेशन है, थियोरेटिकल फाउंडेशन, हमें किस में मिलता है? फिलोसॉफिकल थ्योरीज में मिलता है। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो हमें अलग अलग शाखाओं के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस समझने हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है वी शुड हैव हिस्टोरिकल नॉलेज। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था। टू अंडरस्टैंड एंड टू नो द नेक्स्ट पार्ट, continue with me, subscribe my channel and stay tuned with me. Thank you very much.